Hello students, today we are starting with a new chapter, Forms of Business Organization. We know that there are different forms of business organization just like sole trade, partnership firm, company, joint Hindu family business and cooperative societies. So a person when think that he should start a business, whether he opt sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, cooperative society or company. These all that he decide to do is upon the circumstances and the requirement of capital he has and the persons he has with his contacts. So one by one we will discuss all the concepts of form of business organization. So we are starting with the first topic, sole proprietorship. So students, let us start with first sole proprietorship. Sole proprietorship, as name suggests, that sole means one. So here one person is there, the business owned by one person, managed by one person and controlled by one person. So single person is here and he own the business, manage business, control the business. So business is owned, controlled and managed by a single person. एक ही person होता है जो business को चलाता है, उसका मालिक भी होता है और सब कुछ manage भी करता है. तो ये person जो है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है, उसे हम सोल ट्रेडर भी बोलते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप को हम सोल ट्रेड भी बोलते हैं. सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज ऑल्सो नोन एज सोल ट्रेड एंड द पर्सन हु इज डूइंग सोल ट्रेड इज नोन एज सोल ट्रेडर. वी नो दैट द मनी invested by sole trader is the only investment given by him in the business. So whenever he invests money, if he is lacking in money in financial terms, he is weak, he can take loan from outside, he can even take help of employees if he is alone, but he can't take as another person as the owner of the business. The owner will remain same as one. He is the single owner, but he can take help from others. He can appoint employees and workers for his help, but the single owner is the sole trader. So the sole trade is business that he is doing. The sole trader is the person that doing sole trade, and the employees he can appoint, workers he can appoint for his help, and he can take loans also from outside. So अगर हम सोल ट्रेड की बात करें तो एक ही पर्सन होता है जो सब मैनेज करता है, ओन करता है और कंट्रोल भी करता है. तो अगर हम उस एक पर्सन की बात करें तो उसको सोल ट्रेडर बोलते हैं और जिस बिजनेस में वो डील कर रहा है उसको हम सोल ट्रेड बोलेंगे. नेक्स्ट, अगर वो अपनी हेल्प के लिए कुछ पर्सन्स चाहता है तो वो एम्प्लॉयज अपॉइंट कर सकता है एंड वर्कर्स अपॉइंट कर सकता है, जैसा कि हम किसी भी स्मॉल बिजनेस में देखते हैं. और नॉर्मली ये जो बिजनेस होता है स्मॉल लेवल पे होता है. तो कोई भी अगर स्मॉल बिजनेस देखें, जैसे कि कन्फेक्शनरी शॉप देखें, तो उसमें एक पर्सन ऑनर होता है बट उसने बहुत सारे पर्सन्स को अपॉइंट किया होता है एज एम्प्लॉयज और एज वर्कर्स. सो दे हेल्प हिम टू रन हिज बिजनेस. सो ही कैन टेक लोन्स ऑल्सो. बाहर से अगर उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो इन्वेस्टमेंट उसकी कम रहने पे वो लोन्स भी ले सकता है आउटसाइड. सो वी आर डूइंग फीचर्स. First of all, what are the features of sole proprietorship? Let's see. First feature is individual ownership. That means the ownership is individual, means in the hand of one person. One person is the owner of the business. So whatever he invests is by one person, and whatever the assets of the business,
Suppose there is building, there is furniture in the business. So every asset belong to that person only because there is individual ownership. तो अगर एक ही पर्सन है तो सभी असेट्स भी उसी की ही होंगी और सभी प्रॉफिट्स भी उसी के ही होंगे. तो वट एवर ही अर्न्स, जो भी वो अर्न करता है वो उसको ही बिलोंग करेगा, उसको किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा ये प्रॉफिट. तो एवरीथिंग इन इंडिविजुअल ओनरशिप वी कैन से everything, whatever the assets are, whatever the profits are, that belong to single individual, that means the owner of the trade. So this is the individual ownership. Next is sole management. So we know that the owner is one. So if we want to manage something in the business, every responsibility lies upon him. तो अगर एक ही पर्सन है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी हैं, तो सब कुछ मैनेज भी उसको करना होता है. मैनेज करने के लिए अपनी हेल्प के लिए वो एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर सकता है, बट मैनेज का जो काम है वो सारा उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो एज वी नो इंडिविजुअल ओनरशिप मीन्स वन पर्सन इज देयर, द ओनरशिप इज ऑफ द वन पर्सन. तो अगर उसके पास कोई भी असेट्स हैं एंड प्रॉफिट्स ऑल्सो, वी आर टॉकिंग अबाउट असेट्स एंड प्रॉफिट्स. सो असेट्स एंड प्रॉफिट्स के बेस पे अगर हम देखें तो वो एक सिंगल ऑनर है. बट अगर हम लाइबिलिटी के बारे में देखें कि अगर उसने बाहर से लोन किए हैं तो लोन्स की वजह से, लोन्स लेने की वजह से अगर वो लायबल है बाहर पे करने के लिए, बट इफ ही इज नॉट एबल टू पे टू others, that means to repay the loans, he is not in the condition to repay the loans, in that case he is liable for everything. He alone, means the sole trader alone is liable to pay every liability. So he has unlimited liability. Unlimited means his personal assets, apart from his business, उसके अगर बिजनेस से अलग से देखें तो उसके पास कुछ अपनी असेट्स भी होंगी, अपनी प्रॉपर्टी भी होंगी, वो भी उस टाइम पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी में अगर हम देखें कि बहुत सारी लाइबिलिटीज हो गई हैं, उसको देने वाली हो गई हैं, तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस में वो उसकी पर्सनल असेट्स भी यूज कर ली जाती हैं बिजनेस में. तो कुछ बार ऐसे केसेस होते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से उसको बैंकरप्ट और जो है वो भी उसको जज कर दिया जाता है कि वो अनेबल है पे करने के लिए, तो इंसॉल्वेंट भी हो सकता है वो पर्सन. सो नेक्स्ट इज द केस फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, वेयर द ऑनर इज वन. एक पर्सन है, सो ही इज फ्री टू सिलेक्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस, ही कैन डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस ही वांट टू डू. सो he has freedom in selection of business. Next is secrecy. So single owner is there, so whenever he want to manage anything, all the responsibilities is on him, and whenever he has to apply some policies or some rules to the business he is doing, he take decisions only by his own. He doesn't take help of others. तो जब भी उसे कोई डिसीजन लेना होता है उसको दूसरों पे डिपेंड नहीं होना पड़ता. तो इसकी वजह से उसकी सीक्रेसी भी रह जाती है कि किसी और के साथ उसको शेयर नहीं करनी उसकी बात, और ये उसके बिजनेस के लिए भी प्रॉफिटेबल होता है क्योंकि उसके बिजनेस का जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी कंडीशन है, उसके प्रॉफिट्स हैं, एवरीथिंग, जो भी उसके एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के, वो सिर्फ उसी के पास ही रहते हैं, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता. तो उसके बिजनेस में सीक्रेसी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेसी होती है. नेक्स्ट इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. तो हमें पता है जब एक सिंगल ऑनर है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस में उसकी पर्सनल असेट्स भी यूज़ कर ली जाती हैं बिजनेस में,
उसकी लाइबिलिटी को पे करने के लिए, सो वी नो दैट he has no separate legal entity. He has no legal entity apart from his business. Whatever he does, he is, and his business is the same thing. Next is undivided risk. So risk, whatever risk is there in the business, that is undivided. अनडिवाइडेड मीन्स सपोज अगर 2 पर्सन होते हैं तो रिस्क भी डिवाइड हो जाता है 2 पर्सन्स में, बट वो सिंगल ऑनर है तो उसका जो रिस्क है वो अनडिवाइडेड है. दैट मीन्स वट एवर द रिस्क विल बी इन केस ऑफ लॉस, ही हैज़ टू सफर दैट लॉस, एंड इन दैट केस ही हैज़ अनडिवाइडेड रिस्क. नेक्स्ट वी हैव suitable for some special form of business. तो ये अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप स्मॉल बिजनेस होता है इसमें. तो अगर स्मॉल बिजनेस है तो कुछ ही ऐसे बिजनेस हैं, कुछ ही ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं जिन पे ये अप्लाई होता है, जो स्मॉल लेवल पे किए जा सकते हैं बाय सिंगल ऑनर. जस्ट लाइक ब्यूटी पार्लर, जस्ट लाइक कन्फेक्शनरी शॉप, स्वीट शॉप. सो जो ऐसे छोटे लेवल के बिजनेस हैं वो एक सोल प्रोप्राइटर कर सकता है, और उसे हम जितने भी बिजनेस छोटे लेवल के होंगे, स्मॉल लेवल के, जिनमें लिमिटेड लाइबिलिटीज़ हों, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स हों, प्रॉफिट्स भी लिमिटेड आते हैं उसी के अकॉर्डिंगली, और एक पर्सन ही उसको जज कर सकता है, रन कर सकता है इजीली एम्प्लॉयज़ रख के, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं. So these are the features of sole proprietorship, and every detail I have told you about sole trader or sole proprietorship.